Constitution as it stands says it is necessary to take immediate action. Now what's done in the past, maybe 2 wrongs don't make a right, 20 wrongs don't make a right. Let's go by some principles, not according to expediency and to favor one political leader or some politicians. That's my point. Okay. Ordinance requires immediate necessity for action, and that action must be in the national interest. Okay. I think on that note we need to end. The fact of the matter is that whenever an ordinance is issued, there is always these kind of discussions. As I pointed out earlier, every government in the past has been using this ordinance power and justifying it. Whether this government will be able to justify it in the eyes of the people is something which we'll have to wait and watch. Thanks to all my guests, Mr. Soli Sorabji, PC Chacko, Nalin Kohli, Vinod Sharma and Mr. PDT Achari. Please keep watching. We'll come back with another issue in Big Picture same time tomorrow. बदल रही धरती को लग रहे हैं रोग। कौन लूट रहा है हमसे जिंदगी का जेवर? विकसित देश प्रकृति की हर चीज को अपने उपभोग की वस्तु बना देना चाह रहे हैं। India cannot emulate the example of the developed country. सारे सवालों का उत्तर देखिए तापमान के तेवर। विशेष रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। औसतन अगर उत्तर भारत की विधानसभाओं को देखा जाए तो वो कुछ 25 से 30 दिन तक काम करते हैं। न तैयारी करते, न संसद के कामकाज में दिलचस्पी लेते। काफ़ी व्यवधान संसद में भी और विधानसभाओं में हो रहा है, तो उस पर सहमति नहीं बन पाई, तो हो तो बहुत अच्छा है। संसद और विधानसभाओं के हालात पर नई सोच, नया नजरिया, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। The death toll in the devastating earthquake in Pakistan's southwest Balochistan province rose to 217 today amid fears that it could go up. Rescue teams are struggling to reach many of the far-flung areas in Balochistan because of lack of proper roads. The 7.7 magnitude earthquake injured 350 people in Avran district. Over 300 Army and Frontier Corps troops are already involved in the rescue operation. Military sources said more troops are being mobilized. The much-anticipated meeting between the US President Barack Obama and his Iranian counterpart Hassan Rouhani failed to take place on the sidelines of the United Nations General Assembly. However, US would continue with its direct talks with Iran through Secretary of State John Kerry, as announced by Obama in his address to the United Nations General Assembly yesterday. The US had even proposed a chance encounter, like a handshake on the margins of United Nations General Assembly. There were signs that the US and Iran would have the highest diplomatic contact since Iran's 1979 Islamic resolution to settle Tehran's nuclear issue. Prime Minister Manmohan Singh today confirmed that he would meet his Pakistani counterpart Nawaz Sharif during his US visit that began today. Singh, in his departure statement, said he looked forward to bilateral meetings with leaders of some neighboring countries, including Pakistan, Bangladesh and Nepal in New York. Singh and Sharif are expected to meet on 29 September. The issue of terrorism emanating from Pakistan is expected to figure prominently in the meeting. India has maintained that terrorism emanating from Pakistan are a matter of concern. Addressing a rally in Bhopal, BJP's prime ministerial candidate and Gujarat Chief Minister Narendra Modi came down heavily on the centre for its lax approach towards skill development and youth. He said the government has mastered the art of disbanding committees on the issue. He accused the centre of losing precious time in imparting skill training to youth due to its flip-flop. The BCCI today slapped a life ban on former IPL Commissioner Lalit Modi after its disciplinary committee found him guilty on 8 charges of indiscipline and misconduct. On the day of high drama that was marked by legal tug-of-war between Modi and the BCCI, a special general meeting of board took less than half an hour to unanimously impose a life ban on the controversial 49-year-old administrator. Modi, the brain behind the successful IPL, made a last-ditch effort to avert the impending sanction by reminding BCCI members that the matter was sub judice. However, not a single member supported Modi.
warm welcome to The Point. Congress recently announced the bifurcation of Andhra Pradesh, but the sentiments are quite high on both sides of the divide. What will happen after bifurcation? What could be the social, political and the economic fallout? Well, let's talk to the man on the hot seat, Chief Minister of Andhra Pradesh, Kiran Kumar Reddy. Welcome, sir, on Rajya Sabha Television. Sir, now that the government has rejected the contention that the Telangana process would be put on hold, are you still hoping against the hope to save Andhra? No, the state of Andhra Pradesh, the decision taken by the CWC, there is a constitutional process which has to be followed. And without addressing the concerns of the people of both the regions, both Seemandhra and Telangana, it is difficult to go through the division process. We've got a lot of problems which come with the division, and these concerns should be addressed before going forward. What you mean to say is that was it a hasty decision? They could have taken some more time? It's not the question of hasty decision. Although the decision was a section of the area, that is the Telangana people were asking for a separate state from a very long time. The contentious issues which come with the division are the major problem. That is the issue of capital, Hyderabad, where people have come here from different places from 1956. From the time they felt that this is their capital and this is where their future lies. That a lot of people have shifted from Madras, which was our capital then, came to Kurnool, and from Kurnool they have come here. It is the doctors, it is the professional advocates, it is for other businesses, but for it's prosperity. People from all the sections of the society. In fact, I will come to that later, Mr. Reddy. But what are you hoping from the Antony Committee, which is just about to come? It's all over the newspapers that they're going to come and hear the concerns of the Seemandhra region. So do you feel that they could have done this earlier? In fact, maybe with a high-powered committee involving the irrigation experts, involving academicians and so on? No, you have got problems already. A Sri Krishna committee report is there. The problems of the farmers and irrigation problems are very severe. And we already have a running problems with the different states. That's Karnataka, Maharashtra, one side Orissa and other states. We cannot have another irrigation problem for the farmers by dividing the state of Andhra Pradesh. But sir, some irrigation experts also say that according to the riparian rules, if you set up a control board, a central control board, that all control boards in this country have failed miserably. All control boards have failed miserably. It could be the Kaveri Accord, or it could be the Punjab Haryana Accord, or all irrigation and accords have not done well in this country, and it is not proper to come forward unless you come forward with a solution and satisfy the farmers of how their interest will be protected. So it is very difficult, and the problem is not one-sided. We are going to have problem as far as the education of the youngsters is concerned, because it is Hyderabad centric. We are going to have all the medical facilities are Hyderabad centric. So employees problem, because of the way we have got a presidential order of, we have got a peculiar recruitment process, and that process is for taking all the backward districts and backward areas into consideration, 371D, and a lot of problems will come if it is divided. So all these concerns should first be addressed before thinking of a solution. Not after the solution you cannot address these things. First you should show the solutions for these and then think of how to go ahead. But sir, regarding the water sharing, we've been also speaking to the irrigation experts. If you have to correct me if I'm wrong. I think Bachawat Tribunal, they have already allocated the amount of water which has to go to each district. So do you think that there will be a lot of politicking as far as the release of water is concerned to the districts? Not only the release of water, we have got, because we are the last riparian state,
the excess water, we have got a lot of flood water which we have converted into irrigation projects. Although our allocation is less, and due to different reasons, specifically due to Almaty and other problems on Krishna, we are having a problem in Krishna basin. Our utilization to our what we get, and both assured water and flood water, if it's a good year like this year, there is no problem. If it's a bad year, we are going to have a severe problem between the farmers of different districts. So allocation of water is a different thing, and distribution of water is a total different thing. And these projects are both have got electricity generation and irrigation together. So if you use it more for irrigation, if you are two different states, and there is no place in this country where the river is going to be divided into, split into half in two different states. The project is going to be split into half into two different states. These are the severe problems which we will have to address before we go. So, sir, there are several ongoing irrigation projects. What happens to them if bifurcation becomes a reality? No, see, completing the projects is one of the biggest challenges. Okay. See, the first SRC or the Fasal Ali Commission said the state should be united because of maximum utilization of the Krishna and Godavari rivers can be done only if these two rivers come under one territory. That was the recommendation, one of the recommendations. There are of course other recommendations that it should be divided. But if this these two terrains did not come under one state, the projects, not a single project would have come up in this state. Okay. But sir, talking about power, Telangana leaders are going around and saying that if power is a problem, we will purchase power. Do you think that is going to be possible really, looking at the ground realities? It's a very major subject. It's not the question of power now. Their consumption is to their production is only 50% is what they are producing now to what they are consuming now. But that is not the end of the problem. The real problem starts when all the lift irrigation schemes they are going to come in the next 4 or 5 years, they are going to come up. And Telangana, because of the water goes much below the ground level, only lift irrigation is possible. And we require 175 million units of power every day for 4 to 5 months to lift this water. So we'll have to wait and watch how much power they are going to purchase if Telangana becomes... They already are 50% short. Okay. You see, and we do not have corridors to purchase power. Okay. This is a very major issue and it is concern of the people. So all these issues should be addressed before we go ahead. Hyderabad, the issue of Hyderabad, the issue of river water sharing, the education, the employment, and we have got a peculiar policy of recruitment. So there are going to be lakhs of people who are going to be displaced in both areas, from both areas, because if the state is divided. So all these problems have to be addressed before we go ahead. So these are quite a large number of problems like what you are telling me, but there is a perception outside that the entire fight is not about United Andhra, it's about the golden goose of Hyderabad because all the investments are here, all the leaders have invested here. So how would you substantiate that really? It's not so. It's a public cause. Leaders, individuals don't matter. See, the sentiment attached to Hyderabad. For example, I was born in Hyderabad, I have studied in Hyderabad, I have grown up in Hyderabad. After 53 years, you say you don't belong here. This is the feeling of lakhs of people, and 80% of the people who stay here were born after the division of the state. So you just cannot say that Hyderabad is ours. Hyderabad belongs to whole of Andhra Pradesh from a very long time. And from the last 400 years, there are instances and their history would say that it was under one ruler, or it was under one kingdom, or it was under one area.
So you're talking about a sentiment, of course, which is on both sides of the divide, the pro-Telangana and the anti-Telangana. But the Samaikya Andhra sentiment which is there, people generally call it, it's a hogwash, it's artificial, majorly propelled and fueled by the political leaders. How far is that true, really? You can't expect lakhs of people to come onto the roads every day for the last 50 days or so. Lakhs of people, 3 to 4 lakh people are participating every day in the agitation. There are about 6.5 lakh government employees who are on strike in this area, who are not taking their salary also. So they depend on their salary, their whole family is dependent on their salary. So they are not taking their salary from the last 40 days or so. And you say it's because of that sentiment which is coming from within. It is not the question of sentiment. It is, one is the sentiment, one is the future loss they see, that if it is divided, if the state is divided, the problems they are going to face. So the fear should be removed if you want to go ahead. You cannot have lakhs of people on the road and lakhs of employees on strike, and about 12,000 buses are not flying belonging to the RTC because all the employees are on strike. So, but buses not running, lakhs of people coming on the streets, employees not getting their salaries, schools not running because classrooms are shut down, teachers and students are protesting together. That's the scenario which you are telling me. But then at the same time, questions are being raised as to how the Chief Minister is not intervening to stop all this. No, I am the Chief Minister of Samaikya Andhra. So I have to address the concerns of all people. As far as the education is concerned... You would agree with what Digvijay Singh has said, that probably you have already started behaving as the Chief Minister of Simandhra region? It's not Simandhra. I don't think Mr. Digvijay Singh has spoken that way. I do not want to comment on what I read in the paper. But I am the Chief Minister of Samaikya Andhra. Samaikya Andhra means it is the 3 regions. Yes, I am concerned about the employee strike. I am concerned about the schools not running. I am concerned about the farmers. But we have been, there is a continuous dialogue between the government employees and our ministers. We have formed a subcommittee, cabinet subcommittee. We are talking to them, trying to persuade them to come back because your feelings have been aired and we are aware of it. We are also talking to the central leadership and the central government and our party. So we are asking them to come back to work. But what about the losses which have been incurred in this course of time with governance almost coming to a standstill? We will have to take it as it is, because this is there was a big strike in the Telangana area also. This happened then also. Now it is the other area. So we'll have to take the losses as it is, because it is a people's movement. Both of them have been people's movements. But sir, as a Chief Minister, don't you think that you have to do this tightrope walking of balancing the sentiments of both the regions? It's a very crucial question. Yes. How are you really doing that? Are you actually talking to the Telangana leaders at this point in time? Yeah, everyone come to me. Okay. As far as Telangana leaders are concerned, they are a part of my government, they are part of our legislators, and we are working together. Yes, they understand the problem because they have faced this problem earlier on. See, once the sentiments of both areas have to be put in mind before some decision is taken. We cannot have an unilateral, one-sided decision when there is contentious issues which are bothering the people of the state. The issue of common capital being Hyderabad is a very serious issue. All your investments are concentrated apparently in the Hyderabad metropolitan development area. I think a lot of debate is required about Hyderabad and how it has to be, and we'll have to see our constitutional provisions. There is nothing called as joint capital. If it has to be a joint capital, there is different aspects of having a joint capital. There are difficulties of having a joint capital. It should become an UT. What type of UT? All these are under consideration and discussion. So it's not proper for us to discuss about this before the center comes to some concrete proposal. But sir, with the center having categorically said that the Telangana process is in the pipeline, which means it's irreversible and it's going to happen at some point of time. So
how are you really thinking of, you must be having a plan B in your mind as to how the industries will be migrated. For example, in the Hyderabad Metropolitan Development Area, you have about 40% revenues coming from there because of the concentration of the software, services sector and the manufacturing sector. Is there any plan how to migrate the industries now to the other regions? It's too premature. We are not thinking of all that. First, we'll have to address what is the present issue in our hand, whether an amicable solution can be worked out. Only then we can think of revenues. So which means that you have some hope from the Antony Committee which is going to come here to assuage the concerns of the Simandra region? See, a decision has been taken by the party. There is a constitutional process which has to follow. In this constitutional process, there are a lot of agitations have come in. So they will have to consider all this process before going ahead. And there is a lot of serious resistance from the people of Simandra also and from the politicians also. So I think the High Command will take all these into consideration before going ahead. So you still have a lot of faith in what the High Command will do and what the party will do. But let's take a short break at this point in time and return with lots more on the other side. State is more important than any political calculations. No match is over till the last ball is bowled. कैसे चलाते हैं शब्दों के वीर तरकश से तीर। इस देश को SIT चलाएगी कि पार्लियामेंट चलाएगी? सरकार अगर काम करना चाहती तो कौन रोक सकता भाई? वोट्स को एक बिजनेस बनाया गया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं ना कहीं तो अपने गिरेबान में भी झांक के देखे। तीखे सवाल, उत्तरों की ढाल। सबसे पहले भारत है, देश है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट, पार्टी का इंटरेस्ट आता है। बंगाल का जो समस्या है उसको हल करने में हम जरूर सरकार का साथ एकजुट होकर बात बोलेंगे। अगर आप समझिए कि राजनीति दफ्तरों में बैठ करके होता है तो फिर वो नहीं हो सकता। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। शर्म आती थी लोगों को जब मैं कहता था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। इस इंडस्ट्री में जगह बनाना मैंने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ्लॉप फिल्म मेकर जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मनुष्य है। नमस्कार, मैं हूं मधुर भंडारकर और मुझसे मिलिए आप प्रोग्राम गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Welcome back. You're watching To The Point with Andhra Pradesh Chief Minister Mr. Kiran Kumar Reddy. Mr. Reddy, there are many concerns about the political fallout as to what's really going to happen to the leaders from Andhra and the coastal Andhra and the Simandra regions. Given the fact that elections are around the corner, what are you really foreseeing for the leaders here? I don't think any leader from the Congress party is thinking of his future or thinking of the next election. They are thinking about having how to have the state united. That is what the Simandra leaders are looking at. Elections and all will be taken, will be thought of when they come. But the present thinking is the big agitation going on, and how do we address them? How do we smoothen them? How do we try to convince them about going ahead? But sir, given the fact that you said that the concerns have not been addressed properly, and then also a decision has been taken by the party. Don't you think now you are actually on a war path with the party? It's not the question of war path. I have to answer the concerns of the people here. When lakhs of people have got certain concerns, and it is all the more my responsibility as Chief Minister of the state to satisfy them, to talk to them, to convince them, and what is good for the state, what is good for the people of Andhra Pradesh, both regions, I'll have to talk to them and go ahead. We cannot have solutions or we cannot have thinking that we are coming to a solution, creating bigger problems than the existing problem. But a lot of MPs and MLAs are saying that they will put in their resignations the moment the cabinet note is moved and some kind of a movement is done in Telangana. So do you think that that's really going to solve the problem politically?
We don't know, let's see. I think it's not proper for me to comment about resignations and other things. But they are very concerned about the state, and the state being united. It is the pressure of the people of the region that the state should be united. So because of your concerns, obviously you're saying that it's improper on your part to talk about it, but it's really unbelievable, and that the leaders are not thinking about the political calculation they are doing for the coming elections. You're saying they're not doing it at all? State is more important than any political calculations. Okay. And the concerns of the people are more important. Party functions as for the will of the people. So we have to answer the people. But so the other parties have already begun themselves to begin in that momentum, where they are going to be active, also thinking if Telangana is going to be formed, what will be the option for them? No, see, each party has got its own views or thinking. But here the issue is much bigger than the party. The concerns of the people of the state is much bigger than the party or the party's view. We'll have to answer the concerns of the people first. That is how a party comes to power or is not in power. We have come to power because of the support of the people. So if we do not answer the people, it is our duty to answer the people. It is our duty to see that their concerns are met and their concerns are addressed. So a very important thing which one can't overlook is the fact that Andhra Pradesh has 42 Lok Sabha seats, and now with complete political washout in the Andhra region, do you really feel that the buying power or the bargaining power, I would rather call it, the AP leaders would actually come down? What is your political assessment? Both the times the UPA government in center has come because of the major support they got from Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh always has been with the Congress party. Even during Mrs. Gandhi's time, during emergency, this is the only state which has given 41 seats out of 42. Right. And when Madam Indira Gandhi came back to power, we got 41 seats in Andhra Pradesh, and she was an MP when she died as Prime Minister from Andhra Pradesh. So there is a lot of concern and a lot of liking towards the Gandhi family in Andhra Pradesh. So it's all the more responsibility that the Congress party has to be more sensitive towards the people's will and people's wishes in Andhra Pradesh because of their liking towards the Gandhi family. So you just now said that you are for the Samaikya Andhra sentiment. I am the Chief Minister of Samaikya Andhra. Right. Samaikya means united. All the three regions united. United, that is Samaikya. But there are lots of fears in the minds of the people of Telangana, and they have been making allegations of exploitation, discrimination. So how do you really think at this point in time, will you be able to assuage their fears? No, I don't think this is the time to think about all these things. See, this is a time where one particular decision has been taken. How do you address that decision, or how do you overcome that decision? Whether we have to go ahead, if you have to go ahead, how do you go ahead? If you can't go ahead, what do we do? How do we address the people of all regions, and how is this going to go ahead? This is what is the concern of the government, and what should be the concern of the party. So unless we address all these things, it is very difficult to go ahead. The people of this state, because of their affection towards the Congress party, we have to be more sensitive towards their what they want. We also know that Kiran Kumar Reddy is a cricketer by heart. So do you think that are you going to play with a straight bat, or you have a scoop or a reverse shot still left to play? No match is over till the last ball is bowled. Well, on that note, thanks very much for coming on To The Point. So that's all the time we have for with this interview on To The Point. See you next time. Goodbye and thanks for watching. कलम की दुनिया का सितारा, उंगली पकड़ के मुझे सिखाने वाला मिला, उस शख्स का नाम था राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। सानिध्य मिला जिन्हीं आला हस्तियों का।
उस जमाने में नेहरू जी से भी, मौलाना आजाद को भी, क्योंकि आते जाते थे लोग उनके पास। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइस चांसलर थे जामिया मिलिया के। यादों का एक तवील सफर, मिली शख्सियत में डॉक्टर केवल धीर सिंह, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। An eye on global politics. They don't want Syria to become another Libya. Big moves, victories, defeats, scandals. They want Iran to be isolated in the international community. Presenting international events in perspective. President Obama's record on the economic front is pretty bad. Every week, catch it all on World Panorama. देश एक के बाद एक डरा देने वाले ऐसे दंगे देखता चला जा रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयार किए गए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल पर एक सन्नाटे भरी खामोशी है। ये बिल मैं समझता हूँ बहुत ही वांछनीय है, डिजायरेबल। हाल ही में प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को भी खत लिखा है कि जल्दी से जल्दी इस बिल को आने वाले सत्र में पेश किया जाए। ये सरकार का कहना कि हम ये पूरे कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। ये बिल में केवल हिंदुओं को फंसाने के लिए और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, क्या यही इस बिल का उद्देश्य है? देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। व्यापार और निवेश, रक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है, लेकिन माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील शामिल होगी। दबाव इस बात का भी बन रहा है कि पिछले कई सालों से लंबित पड़ा ये सौदा, जिसको भारी राजनीतिक कीमत के साथ हासिल किया गया था, पटरी पर इसको लाया जाए। दोनों नेताओं पर इसका दबाव है। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों में देखें तो अफगानिस्तान को लेकर भी 2014 के बाद की रणनीति क्या होगी, भारत की भूमिका क्या होगी, और भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनके बीच जिस तरह का तनाव है और जो बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, वो भी ऐसा लगता है इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत में जरूर आएगा। इस सब पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मनमोहन सिंह आज अपनी अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ तीसरी शिखर वार्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें अधिवेशन में शिरकत करने के अलावा सभा को संबोधित भी करेंगे। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन में होने वाली बैठक में ओबामा और मनमोहन असैन्य परमाणु सौदे, रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत करेंगे। मनमोहन सिंह की ओर से अमेरिका के वीजा नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। व्यापार में निवेश, आतंकवाद निरोधी सहयोग पर द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। अगले साल अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना के हटने से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने को लेकर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं एएन राम, जो कि पूर्व राजदूत हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर पंकज झा हैं, जो कि रिसर्च फेलो हैं ICWA के, और साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट होने के अलावा वो एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, और संदीप दीक्षित हैं सीनियर असिस्टेंट एडिटर द हिंदू अखबार के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत कर सकूं, संदीप दीक्षित, फिलहाल काफ़ी मुद्दे टेबल पर हैं ज़रूर, लेकिन माना यह जा रहा है कि खासकर बराक ओबामा के एजेंडे पर जो है सिविल न्यूक्लियर डील होगी। हाँ, वो सिविल न्यूक्लियर डील में भी रस्म अदायगी होगी,
पर अगर आप देखें कि अमेरिका के लिए एशिया में प्राथमिकताएं क्या हैं, तो पहले रंग पे आते हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उनके एलाइज। दूसरे रंग पे फिर और देश आते हैं और हिंदुस्तान तीसरी कैटेगरी का देश है। और उसी तरह हिंदुस्तान की अगर प्राथमिकताएं देखिए कि तेल की प्राथमिकता है तो थोड़ी बहुत अमेरिका से पूरी होती है, मिलिट्री की है तो थोड़ी बहुत अमेरिका से पूरी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा ही बहुत पूरा होता है, यानी दोनों देश एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए जिसको जो कि एक्सपेक्टेशन है जो हम एडिट पेज में देख रहे हैं, जहाँ की कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका को ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से बढ़ के एक पूरी ऑल वेदर रिलेशनशिप करनी चाहिए, तो वो संभव है भी नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय रीजनल मुद्दों पे अगर आप देखें, सीरिया पे भिन्न राय है और ईरान के ऊपर भिन्न राय है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में, देशों में किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पे भी भिन्न राय है। तो दोनों हिंदुस्तान और अमेरिका की रियली कन्वर्जेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ दोनों एक दूसरे की अभी जो दोस्ती हुई है पिछले 8, 9, 10 साल की, उसका फायदा दोनों उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मेरे ख्याल से जो 2-2.5 घंटा बराक ओबामा साहब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलेंगे तो कवायद यही रहेगी कि थोड़ा बहुत एक दूसरे से फायदा उठा लें। सिविल न्यूक्लियर डील, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें रस्म अदायगी होगी, इसमें एक अश्योरेंस दिया जाएगा अमेरिका को कि हाँ आप यहाँ, आपको ठेका मिल चुका है और आप इस ठेके में आगे बढ़ेंगे, पर बाकी मुद्दे जो हैं उनको भी सुलझाना जरूरी है। लेकिन संदीप, एक बात समझ में नहीं आती कि जब इस न्यूक्लियर डील को पास कराने वाली बात थी, हम जानते हैं जिस तरह का एक सियासी जलजला भारत में आ गया था, सरकार दांव पे लग गई थी, उस सब कुछ को करने के बाद कई सालों बाद भी जमीन पर उतरकर वो डील क्यों नहीं आ रही है? पहले उस पर इतना जोर क्यों था और अब इसको आगे अमली जामा पहनाने में इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ, वो डील एक्चुअली 2 कारणों के लिए थी। एक कारण जो कि हम और आप जानते हैं वो है ऊर्जा जनरेट करना, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और दूसरा ये था कि इंडिया की जो आइसोलेशन थी, जो अमेरिका ने इंडिया को अलग थलग डाला हुआ था अपने दोस्तों के साथ मिलके न्यूक्लियर फील्ड से, तो उसमें एक वापस आने का और इंडिया की रिकग्निशन एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जैसा कि आप जानती हैं सिर्फ 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाता है और इंडिया कहता था ये एक किस्म की अपार्थीड है कि 5 जो शुरू में आ गए उनको तो आपने मान लिया, बाकियों की ना आपने सिक्योरिटी कंसिडरेशन पे ध्यान दिया, ना किसी चीज पे ध्यान दिया। तो हिंदुस्तान अकेला ही लड़ता रहा काफी साल तक इसके खिलाफ, और ये फिर अमेरिका की एक रिकग्निशन थी कि हिंदुस्तान अपने पैर पे खड़ा है, इसकी इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और इसका जो तर्क है जो इंडिया ने दिया वो वाजिब है, और इसलिए उसमें एडमिशन हुआ। तो इट वाज नॉट ओनली अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। बिल्कुल। जनरल बख्शी, ये बताइए कि अगर हम डिफेंस डील्स का हम जिक्र करें तो यहाँ पर C-130J जो एयरक्राफ्ट की खरीदारी की बात हो रही है, हम जानते हैं कि लगातार हमें बताया जा रहा है कि जो माली हालत है, जो इकोनॉमिक हालत है वो कितनी ख़राब है, उसके बावजूद भी पूरी संभावना इस बात की है कि डील फाइनलाइज हो जाए और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अक्टूबर-नवंबर में इस डील का मसौदा भी आ जाएगा। देखिए, जो C-130J हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ही मुफीद और कारगर एयरक्राफ्ट है, और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में दौलत बेग ओल्दी की हवाई पट्टी पर ये हमारे जहाज लैंड कर चुके हैं, जो कि एक बड़ा जो है संगीन संकेत चीन को भी देता है कि वो ऐसे क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए ये हमारे स्पेशल फोर्सेस के लिए भी ये जहाज है और ये तो एक बहुत अच्छी और कारगर डील है। इसके अलावा जो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनकी डील की बातचीत चल रही है, प्रोडक्शन की बात इंडिया में चल रही है, जॉइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है, और जो है आपके माइन स्कैटरेबल व्हीकल्स जो हैं, जो कि माइन बिछा सकते हैं, माइन स्कैटर कर सकते हैं, उनके लिए भी बातचीत चल रही है। और इसके अलावा जो M777 जो कि अल्ट्रा लाइट होविट्जर, जो कि हमारी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये अल्ट्रा लाइट होविट्जर की हम खरीद करना चाहते हैं, और खासकर हमारा जो स्ट्राइक कोर चीन के बरखिलाफ खड़ा होगा अपने नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए भी ये आपको चाहिए होंगे। लेकिन इसके अलावा देश में जो माहौल है, C-17
जल बख्शी, देश में जो माहौल है, जो ये बताया जा रहा है कि हम दरअसल आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं और जो जरूरत है वो इस बात की है कि फूड सिक्योरिटी जो सरकार ने सुनिश्चित किया है वहां पैसा लगाया जाए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक क्रिटिसिज्म सरकार को देश के अंदर नहीं झेलना पड़ेगा कि डिफेंस डील का शायद ये सही वक्त नहीं है, और खासकर ऐसे वक्त में जब बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार खड़ी है कांग्रेस पार्टी और सरकार। देखिए, आप जो है फूड सिक्योरिटी को देखते देखते अपने देश के द्वार देश के दुश्मनों के लिए खोल नहीं सकते। प्लीज आप देखिए कि आपके क्षेत्र में हो क्या रहा है। क्या आप जानती है कि आज के दिन चीन का जो रक्षा बजट है, जो कि अनाउंस रक्षा बजट है, वो 109 अरब डॉलर है, और जो पेंटागन का जो अनुमान है कि जो चीजें वो छुपा रहे हैं रक्षा बजट में, मसलन की R&D इत्यादि, अगर वो जोड़ा जाए तो 165 से 200 अरब डॉलर प्रति वर्ष जो है चीन खर्चा कर रहा है अपने रक्षा सौदों के ऊपर। आपका रक्षा बजट आज के दिन 37 अरब डॉलर है। आप इतना बड़ा वल्नरेबिलिटी गैप खोल रहे हैं। कल एक और 1962 होगा, कौन जिम्मेवार होगा? फिर हम खाना खाते रहें और डिकार लेते रहें, लेकिन आपको नुकसान हो चुका होगा। बिना खाना खाए कैसे लड़ेंगे? निश्चित होकर बैठ नहीं सकते। दलील ये भी है कि जो बहुत बड़ा दुश्मन है फिलहाल वो खाना खाए, बहुत है आपके पास खाना। जनरल बख्शी, फिलहाल दलील एक बड़ी ये भी है कि जो बड़ा दुश्मन है ये सब देखिए, ये सब है ना कि विदेशी सेनाएं। आपका सवाल मैं समझ गया, आपका इशारा। ब्रेड वर्सेस बटर डिबेट जो है ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन आप किसी हद तक जो है उसको नहीं कर सकते नजरअंदाज। आपको पाकिस्तान का थ्रेट है, आपको टेररिज्म का थ्रेट है। क्या आप जानती हैं कि 1980 से लेके आज तक 80,000 भारतीय नागरिक टेररिस्ट के हाथ मारे गए हैं, ISI के भेजे हुए टेररिस्ट। क्या किया है आपने कॉस्ट बढ़ाने के लिए? ये सब तो जो ये बहानाबाजी है, और इसमें जो आपका लीकेज हो रहा है उसे कम करिए। जनरल बख्शी, लीकेज हो रहा है उसे कम करिए। 40 से 50% लीकेज ये बहुत दिलचस्प बहस हुआ है। जनरल बख्शी, बहुत दिलचस्प बहस होगी और बहुत महत्वपूर्ण भी है ये बहस। हम जल्दी इस पर एक और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात करते हैं कि मनमोहन सिंह के आगे एजेंडा क्या है, वो किस तरह से जो है देश के जो दुनिया के दूसरे नेता हैं उनके सामने अपना केस रखेंगे। डॉक्टर झा, ये बताइए कि फिलहाल बात हो रही है जो इंडिया का न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, इसको लेकर हम जानते हैं काफी राजनीति भी देश के अंदर बाहर भी गरमाई हुई है। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि जिस तरह की डील प्रधानमंत्री सामने रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो कंपैटिबिलिटी है इस लॉ के साथ हो सकता है वो उतनी ना हो, तालमेल ना बैठे। नहीं, देखिए, खासतौर पे जो मूलभूत जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि भारत सरकार ये कह रही है अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, बट वो कहते हैं एक टाइम पीरियड आप सेट कीजिए और एक अमाउंट सेट कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके उस न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो उसके रिगार्डिंग खुद मतभेद है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रशिया के साथ कुडन कुलन में हमने कुछ एक्सेप्शंस दिए थे, उनको कुछ दिए थे, तो उसी को मूलभूत रूप में रख के कुछ ऐसा मसौदा तैयार किया जा सकता है जिसमें कि दोनों पक्षों की सहमति हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं एग्री करता हूँ संदीप दीक्षित जी से, कि ये आश्वासन वाला एक दौरा है जिसमें ये कहा जाएगा कि नहीं, हम पूरे वो लीग से हट के नहीं गए हैं, हम अभी भी अमेरिका को खासतौर पे न्यूक्लियर इश्यूज को लेके, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान और इवन एशिया वाले मुद्दों को लेके बहुत ही गहन रूप से सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम एक पार्टनर हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। लेकिन विदेश मंत्री ने कहा है कि हम इसी लॉ के मुताबिक इस तरह की कुछ करने की कोशिश करेंगे, डील जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। क्या वाकई ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मुमकिन है कि दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए और कंपैटिबिलिटी भी हो जाए लायबिलिटी लॉ के साथ? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कहेंगे। खासतौर पे आप पिछले 1-1.5 साल में देख रहे हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है इस इशू को लेके, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अगर आप ऐसा कोई मसौदा तैयार करते हैं जिसमें कि आप यूएस को कुछ एक्सेप्शंस देते हैं, तो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछेगी कि आखिर किस कारण से आप हमें बलि का बकरा बना रहे हैं, जबकि हमारी जो सोच है, खासतौर पे जो हमारी परेशानियां हैं उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करना मेरा ये मानना है कि बहुत टेढ़ी कीर होगी।
आज की डेट। बिल्कुल। एन राम जी, जब ये सिविल न्यूक्लियर डील की ही मैं जिक्र कर रही हूँ, संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि एक तरह की रस्म अदायगी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समझाया कि रिश्तों का जो आपस में जो जैसे कहना चाहिए जो जाल है, वो दरअसल दोनों के लिए प्राइम कंसर्न नहीं है, ना ही अमेरिका के लिए भारत, ना भारत के लिए अमेरिका। लेकिन उसके बावजूद इस डील को लेकर जितनी जद्दोजहद की गई, जितनी कोशिश की गई, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर भी ये डील अगर आगे बढ़ती और जिस तरह से हमें बताया जा रहा था कि तमाम गरीबों के घर में जो है वो रोशन हो जाएंगे, बिजली के बल्ब जल जाएंगे, अगर वो सब कुछ हो पाता तो वाकई राजनीतिक फायदा भी पहुंचता? देखिए, इसको हमको परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पिछले कई सालों से भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे और तेजी के साथ सुधर रहे थे, लेकिन पिछले कई लोगों का मानना है कि पिछले 2 सालों में खासतौर से कुछ बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका में भी अब ये कहा जा रहा है कि हमने आपकी मदद की थी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील को आगे बढ़ा दिया था, कि इसी उम्मीद में कि हमारे रिश्ते एक नई नींव पर पहुंचेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जो इस बात की चर्चा करेंगे उसको इस संदर्भ में करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि न केवल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील को एक तरह से प्रिलिमिनरी डिस्कशंस के दौर तक पहुंचा दें, जिससे कि बात आगे बढ़ सके। उसके अलावा कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे जिससे हमारे संबंधों को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। मेरे ख्याल से कोई ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि 2 घंटे के अंदर हमारे रिश्ते बिल्कुल बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक नया दिशा दे सकते हैं। ये दिशा देने की बात है जो कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और लेकिन राम जी, इसके अलावा जैसे कि यूपीए 1 में एक उपलब्धि के तौर पर बताया गया कि ये डील हम करा सके, यूपीए 2 में अगर ये आगे बढ़ती है बात, तो वाकई जमीन पर उतर कर आता है पूरा प्लान, तो शायद ये भी एक उपलब्धि के तौर पर पेश हो सके। लेकिन क्या अभी आपको लगता है वक्त कम है? नहीं, वक्त तो बहुत कम है और मेरे ख्याल से किसी को ये अपेक्षा नहीं है कि अगले 4-6 महीने में कुछ बहुत बड़ी प्रगति हो जाएगी। ये तो सिर्फ ऐसा है कि अब चलिए बात थोड़ी आगे बढ़ाया जाए, यही कोशिश है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो इसको आगे बढ़ाना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बढ़ाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यही कोशिश है। इस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है, केवल ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और या अंग्रेजी में कहें तो इट इज स्टिल ऑन एंड इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज। बिल्कुल। मेरे पास फिलहाल एक ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो भारत और अमेरिका का जो सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं, उसमें चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो रीबैलेंस कर रहे हैं अपने आप को एशिया में, और वो आपको देखते हैं कि चीन के बरखिलाफ आप एक सबसे सक्षम देश हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं, जो कि एक किस्म का समन्वय एशिया के महाद्वीप में ला सकती है, जहां तक चीन का राइजिंग पावर का सवाल है। लेकिन हम लोग चीन से इतने घबरा गए हैं कि हमने तो बिल्कुल ही जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है इससे। और एक जो वजह है कि जो बड़ी तेजी से जो रिश्ते बढ़ रहे थे उनमें एकदम से जो स्लो डाउन सा जो आया है, वो इसके ऊपर आया है कि ये नॉन अलाइनमेंट 2.0 जो हमने इजाद करी है कि साहब हम अमेरिका और चीन के बीच में तटस्थ हैं, जिस प्रकार हम अमेरिका और रूस के बीच में तटस्थ हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन एक ऐसा देश है, रूस ने कभी आप पे हमला नहीं किया, आप उसके साथ तटस्थ हो सकते थे, लेकिन चीन ने आप पे खुलकर हमला किया है। और आज के दिन पाकिस्तान को जितना न्यूक्लियर और मिलिट्री सपोर्ट चीन ने दिया है, शायद ही किसी और देश ने दुनिया में किसी दूसरे मुल्क को दिया हो। बिल्कुल। जनरल बख्शी, फिलहाल मुझे ब्रेक लेना होगा। नजरअंदाज नहीं आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको लेकर कौन से मुद्दे हैं दोनों नेताओं के सामने। ब्रेक के बाद दिल्ली किराया कानून, जिससे त्रस्त हैं किराएदार भी और मकान मालिक। तो ये कहना कि हमने पगड़ी दी थी या ली थी, बेवजह बात है। जिसके पास सबूत है वो आगे आए। सरकार, मकान मालिक, किराएदार और दुकानदार तीनों को बुला के बिठा ले और विवाद के जो 2-3 मुद्दे हैं उन पर सहमति बना ले। क्या हैं उनकी समस्याएं?
और उनकी नजर में क्या होगा समाधान, देखिए हमारे खास कार्यक्रम जन संसद में। जी, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका रिश्तों की। मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में और बातचीत होगी बराक ओबामा, राष्ट्रपति अमेरिका के, और साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं से भी पूरी उम्मीद है कि बातचीत होगी उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से। संदीप दीक्षित, ये बताइए कि अगर अफगानिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में भारत और अमेरिका के कई पेच हैं उनमें से एक पेच अफगानिस्तान भी है। हम जानते हैं भारत की जो सर्वविदित जो यानी स्टैंड है वो ये है कि जो भी चीज होनी चाहिए 2014 में जब सेनाएं वापस जाएंगी अफगानिस्तान से, भारत का कहना है कि अफगान लेड होना चाहिए, अफगान ओन्ड होना चाहिए और अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन दिख रहा है और इस पर जो दोनों देशों के बीच असहमतियां हैं उन पर कोई बातचीत हो पाएगी? अभी तो ये नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका का जो स्टैंड है अफगानिस्तान पे, मेरे ख्याल से 2014 तक 30,000 इनके सैनिक रह जाएंगे, 100 बेसिस में से 5-6 बेसिस रह जाएंगी। तो इनका ये स्टैंड है कि तालिबान के साथ बातचीत करो और ये कन्वे कर दो कि अब पुरानी रंजिशें खत्म, हम चलते हैं और आप संभालिए। तो हिंदुस्तान को इससे काफ़ी तकलीफ है। हिंदुस्तान का ये कहना है कि हिंदुस्तान का ये मानना भी है कि चूंकि वो अफगानिस्तान का करीब करीब पड़ोसी है, तो यदि वहाँ पे काबुल में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि कश्मीर की तरफ एक भिन्न राय रखते हों, तो उसमें हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान को मुश्किल है जलालुद्दीन हक्कानी के नेटवर्क की और उनके साथ एसोसिएटेड नेटवर्क्स की, जिनके की पूरा अक्रॉस पाकिस्तान और इनटू कश्मीर तक तार जुड़े हुए हैं, और पहले भी इन्होंने कोशिश की थी हस्तक्षेप कश्मीर में करने की। तो अफगानिस्तान में जाहिर है कि बिल्कुल ही भिन्न राय है दोनों की, और हिंदुस्तान इसमें ज़्यादा एससीओ के जो देश हैं और कुछ और अन्य देश हैं उनके साथ ज़्यादा राय रखता है, जहाँ की उसको लगता है तालिबान को अगर ख़त्म करना था तो ख़त्म ही करते और उसके बाद फिर कोई आगे राजनीतिक कवायद करते। बिल्कुल। जनरल बख्शी, हम जानते हैं कि भारत के भी काफ़ी स्टेक्स जो हैं वो हाई हैं अफगानिस्तान में। पहली बात तो जो सरहदें हैं, हम जाहिर है अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, हम बहुत कुछ चुन सकते हैं, और वही भारत के सामने भी मजबूरी है। $2 बिलियन की सहायता भारत जो है वो दे चुका है अफगानिस्तान को। इसके अलावा तमाम रिकंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से जो असहमतियां हैं भारत के बीच और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, हम समझते हैं इस बात को, क्या भारत के पास कोई विकल्प है? हम जानते हैं कि जब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में तो भारत और अफगानिस्तान के कैसे संबंध थे? देखिए, जो CIA के फॉर्मर डायरेक्टर थे रॉबर्ट गेट्स, और जो बाद में अमेरिका के रक्षा सचिव रहे, उन्होंने कहा था कि 25% जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं या तो वो अफगानिस्तान से हैं या अफगानिस्तान में उन्होंने प्रशिक्षण पाया है। ये लिंकेज है अफगानिस्तान का हमारी सिक्योरिटी के साथ। आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते अफगानिस्तान के प्रति। और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत कुछ विकल्प हैं। सबसे पहले हमको जो करजाई सरकार और अफगान नेशनल आर्मी है उसको हेवी वेपन्स का सपोर्ट देना चाहिए। हमने म्यांमार की सेना को 2 रेजिमेंट 105 मिलीमीटर तोपों की दी है। क्यों ही हम ये चीज जो है, इस प्रकार की तोपें जो कि भारत में डिजाइन हुई, निजात हुई और बनती हैं, वो क्यों नहीं हम अफगानिस्तान को दे सकते? क्यों नहीं हम ध्रुव हेलीकॉप्टर उनको दे सकते? और वहां से मांग भी आ रही है, हथियारों को लेकर मांग भी आ रही है। T-54, T-55 टैंक्स वो बेचारे डेस्परेटली मांग रहे हैं आपसे, और यहां कहा जा रहा है कि नहीं साहब अगर हम देंगे तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। ये कौन सी हद की नाराजगी है? पाकिस्तान कोई सुपर पावर है कि यहां पे अब हम तो पहले चीन की नाराजगी हमको जो है वो सहनी पड़ती थी, अब हमको पाकिस्तान की नाराजगी सहनी पड़ेगी? उसके लिए हम अपने जो अपने राष्ट्रीय हितों को भूल जाएंगे, उनकी अवहेलना करेंगे? आपको आपका जो है एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ, क्यों नहीं आप उसके तहत उनको वो हथियार दे रहे? समय मेरे पास गिफ्ट करने चाहिए वो हथियार। समय मेरे पास कम है। मैं डॉक्टर पंकज झा से जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को लेकर, अभी अफगानिस्तान की हमने बात की, दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान भी आ गया। हमेशा भारत को एक शिकायत ये रहती है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान टिल्टेड होती हैं। इस बार जब बातचीत होगी तो पाकिस्तान से भारत के रिश्ते और पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते, उस बीच अमेरिका से भारत के रिश्ते, कहीं ना कहीं ये त्रिकोण जो है वो भी
चर्चा में आएगा? देखिए, आपको ये देखना चाहिए कि खासतौर पे जब आप नवाज शरीफ से मिलेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो एक तरह से प्रेशर था यूएस का कि आप ये बातचीत को जारी रखिए। लेकिन हाल फिलहाल में जितनी भी गतिविधियां हुई है बॉर्डर क्रॉस, और हाल फिलहाल में जो भी आतंकवादी घटनाएं भी हुई हैं, और भटकल और कई ऐसे आतंकवादियों को जो हमने पकड़ा है सऊदी अरबिया और यूएई के तहत, उससे ये पता चलता है कि जो सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो एक तरह से असक्षम है। उसको हम मद्देनजर रखते हुए अगर और कुछ सोच सकते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरा, अमेरिका ये जानता है कि जब तक वो रिट्रीट नहीं करता, अफगानिस्तान से निकलता नहीं, उसे पाकिस्तान की सख्त से सख्त जरूरत है। लेकिन कुछ और आयाम है जिसपे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। और हमें भी ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है अफगानिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस तरह से उसको एक रो नहीं दे सकते, एक लंबा हाथ नहीं दे सकते कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मुझे ये मानना है, खासतौर पर मैं, चूंकि ये आप मान सकते हैं कि मैं उस नए वर्ग को बिलोंग करता हूं जिसको ये मानना है कि हमारी जो नीति बैठ के सोचने की हो गई वो खत्म कीजिए। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, आपको एक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप एक हेजिटेंट, एक संकोची पावर बन के बिल्कुल नहीं रह सकते, और यही सोच सबकी है। जी, एएन राम जी, इसके अलावा हम जानते हैं मिडिल ईस्ट में जिस तरह का राजनीतिक बवाल मचा है, उसके अलावा आसपास भी फैल रहा है वो, जिस तरह से संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मतभेद जरूर हैं अमेरिका के और भारत के, लेकिन क्या वाकई ये समय नहीं है जब भारत अपनी लीडरशिप दिखाए, चाहे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हो, उनको खत्म करने की बात हो जो सीरिया के मद्देनजर कही जा रही है, या फिर एक स्टैंड लेने की जो बात है वो लेनी होगी भारत को? देखिए, जब भारत ने शुरू से इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, तब भारत की नीति को सफलता मिली है। कभी कभी ऐसा हुआ है हाल में कि भारत की नीतियों में वो जो इंडिपेंडेंस थी पहले, वो नज़र नहीं आ रही है सबको। अगर अफगानिस्तानी को आप ले लें, भारत की जो हित है वो अमेरिका से साथ जुड़ते नहीं हैं, और इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि अमेरिका अपने हितों के बारे में सोच रहा है केवल। भारत के जो मुद्दे हैं, और मैं जनरल बख्शी से बिल्कुल सहमत हूँ, वो है आतंकवाद को लेके, वो पाकिस्तान को लेके हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अब 2014 के पहले भारत अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ, सेंट्रल एशिया के देशों के साथ, चीन के साथ भी, रूस के साथ एक प्रकार से बातचीत शुरू करे। लेकिन जो न्यूट्रल स्टैंड रहता है भारत का, खासकर मिडिल ईस्ट के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर, क्या स्टैंड ले सकता है? क्या इस पोजीशन में है भारत? बिल्कुल ले सकता है। भारत ने लिया, बल्कि सीरिया को लेके भारत ने बहुत ही अलग पोजीशन अपनी अपनाई है, और इसको भारत ने आर्टिकुलेट भी किया है। न केवल G20 समिट में किया था, उसके पहले ब्रिक्स वाले समिट में किया, फिर अब UN में। तो मुझे लगता है कि जब भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, न्यूट्रल मतलब अपने हितों को आगे बढ़ाया है, तब तक भारत को कोई परेशानी नहीं हुई है। जनरल बख्शी, संक्षेप में, बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि एक चीज जो आपकी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बुरी चोट पहुंचा सकती है, वो है मध्य एशिया में युद्ध, या तो सीरिया के अंदर या ईरान के साथ। अगर ये युद्ध हो गया, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि जो तेल के दाम हैं वो $200 प्रति बैरल पे चढ़ जाएंगे और आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको बहुत हस्तक्षेप करना चाहिए इस चीज के लिए कि किसी ना किसी तरह से हम जो है पीस डायलॉग वहां पे कराएं, और अमेरिका और ईरान के बीच में, अमेरिका और सीरिया के बीच में शांति बहाल करें, तो हमारा उसमें फायदा है। बिल्कुल, ये हमें भी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। लेकिन जनरल बख्शी, खबरें इस तरह की आ रही हैं, वाकई जिस तरह से आज भी कई बार ये देखा गया कि सीरिया और खासकर ईरान दोनों को लेकर जो डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा लगता है कि उसका रास्ता आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका, डॉक्टर पंकज झा, आपका, एएन राम जी और संदीप दीक्षित। तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है इस दौरे से, लेकिन उम्मीद हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो बहुत पुराने मुद्दे, कई पेंच वाले मुद्दे हैं, कम से कम बात कुछ आगे जरूर बढ़ेगी उस पर। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार। मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मीडिया जिसे दिखाता है, मीडिया जिसे छिपाता है, उस पे है हमारी नजर। आपने अपना अखबार बेच दिया है कॉर्पोरेट के हाथ में। हिंदी के अखबार प्रतिपक्ष होना बरसों से छोड़ दिया। जनता के सरोकार या फिर कारोबार, अगर सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठ रहे तो हम पर क्यों नहीं? पूरे टाइम सिस्टम को बैन कीजिए। उसको कवर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या है मीडिया की दुनिया? देखिए मीडिया मंथन हर शनिवार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, आईसीएस से इस्तीफा देकर चुनी संघर्ष की राह, 2 बार चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष, मगर कांग्रेस से बाहर ले आई जल्द आजादी की चाह। जर्मनी और जापान के सहयोग से बनाई आजाद हिंद फौज और एक विमान दुर्घटना में लापता होने से पहले किया आजाद भारत की अंतरिम सरकार का गठन। सुभाष बाबू के जज्बे को आज पूरा देश करता है नमन। राज्यसभा टीवी की कोशिश, मुद्दे समाज की। बहुत सा विकास ऐसा हो गया जो नियोजित नहीं था, अनियोजित था। ये डल झील खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। बात वंचित तबके की। इन निर्माण कार्यों में महिला मजदूरों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर इस किन्नर तबके की बात की जाए तो यहाँ कहानी बहुत अलग है। महरूमियों और सिस्कियों के बीच भी है जिंदगी, और इनकी बेहतरी के लिए कुछ सार्थक कदम उठा पाते हैं। हौसलों, इनके अज़्म और इनकी मेहनत को सलाम। Hello and welcome to State of the Economy, a show that connects you with the prominent policymakers and thinkers. Basically begin to focus on democratization of information. Is doing a better job on the revenue front. Trust begets trust, and you have to do it step by step, brick by brick. Economy is something which cannot grow with a non-functional government. But now again, apparently real estate prices are booming because that's where a lot of money laundering is taking place. Aadhaar becomes a financial address. State of the Economy, only on Rajya Sabha Television. Your weekly date with culture. Welcome to Colors of India. Sunday, 9:30 p.m. on Rajya Sabha Television. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं कवीन सचान। नमस्कार, मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। हेडलाइंस देखते हैं। भोपाल की रैली में जुटे बीजेपी के दिग्गज, केंद्र पर लगाया सीबीआई के दुरुपयोग और बीजेपी शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री अमेरिका रवाना। ओबामा और नवाज शरीफ समेत कई नेताओं से होगी मुलाकात। केंद्र ने दी 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता उत्पादों पर शून्य ब्याज दर योजना पर लगाई रोक। डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। और पाकिस्तान के भूकंप में मरने वालों की तादाद 350 के पार। बलूचिस्तान के आवरान और कीच में सबसे ज्यादा बर्बादी। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर।
आज की पहली खबर बीजेपी की रैली से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश समेत बीजेपी के शासन वाले तमाम राज्यों में हुए विकास की जमकर तारीफ की है। भोपाल की रैली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद ये पहली रैली थी जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर खुला हमला बोला। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई। नरेंद्र मोदी ने इस मंच से मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान की खुलकर तारीफ की। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। दिल्ली की सरकार कांग्रेसी राज्यों को जितने पैसे देती है उससे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं। केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जब से आई है तब से इस कांग्रेस के हुकूमत ने इस हिंदुस्तान में कैसे हालात पैदा किए हैं आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में ये रैली अहम हिस्सा थी। भोपाल के बाद अब 29 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी की रैली होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गजों के जुटने की संभावना है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो बीजेपी की इस रैली के बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी ने जो आरोप केंद्र सरकार और कांग्रेस पर लगाया है उस पर बाकी दलों की क्या राय है, आइए सुनाते हैं। एक विपक्ष है और एक सशक्त विपक्ष है, अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। आज भी हम सशक्त विपक्ष के रूप में उनके सामने एक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, और हमें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोग अब कांग्रेस के साथ आकर के खड़े होंगे। कोई राजनीतिक दल की कहीं रैली हो उससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता है। कौन नेता मंच पे है, कौन नेता नहीं है, पूरी जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी की एक लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से बड़े कॉरपोरेट घराने पूंजीपतियों द्वारा प्रधानमंत्री के एक दावेदार के लिए जो थैली खुली है उस थैलियों के जरिए खर्च होने वाले पर भी अब निगरानी रखी जानी चाहिए। पैसे की ताकत पर रैली थी, भारे के लोग आए होंगे, जनता का कोई आकर्षण न आरएसएस भाजपा के प्रति है न नरेंद्र मोदी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक तरीके का बड़ा जबरदस्त खींचतान है और अगर मैं ये कहूं कि बासी कढ़ी में उबाल आया हुआ है। तो बीजेपी की आज रैली थी और इस रैली के जरिए हम दो बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा ये कि इस रैली में जो एकजुटता दिखी, क्या वाकई ये एकजुटता उतनी ही मजबूत है जितनी नजर आ रही थी, और दूसरा ये कि इस रैली में जिस तरह की भीड़ थी और जो केंद्र पर हमले के तेवर थे वो असल में किस तरह के थे और उनका असर क्या होगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन खास मेहमान। अमिताभ सिन्हा हैं, लीडर बीजेपी से। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, पॉलिटिस्ट, एनालिस्ट और राइटर हैं, सर स्वागत है आपका भी। और विनोद शर्मा जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अमिताभ जी आपसे करना चाहूंगा। मंच पर वो तमाम दिग्गज चेहरे नजर आए, एकजुटता की बात भी कही गई आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, लेकिन क्या जो तस्वीरें दिखी वहां पर थोड़ा सा लगा कि शायद एकजुटता भी उतनी मजबूत नहीं हुई है, कोशिश जरूर की गई है। धन्यवाद कविंद्र जी, आप इतने शुभेच्छु हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपको और मजबूत एकजुटता चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी अपेक्षा है, अब उस अपेक्षा को भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करने की कोशिश करेगी।
लेकिन जितनी अपेक्षित एकजुटता एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में थी, है और रहेगी, वो आज विषय ही नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मध्य प्रदेश जहाँ ये रैली हो रही थी वहाँ के जो उस पूरे बारात के दूल्हे हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन दोनों लोगों के ऊपर में दारोमदार इस रैली की सफलता का है। और इस रैली में दोनों ने ये दिखा दिया कि प्रदेश की जनता, और स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता अभी कुछ महीनों बाद देश के लिए भी अपना निर्णय देने वाली है, ये इन दोनों व्यक्तित्वों के पीछे है और उनके सुकर्मों के लिए निश्चित अमिताभ रूप जी, से। लेकिन एक चीज बताइए, इस रैली का पॉलिटिकल मैसेज क्या था? क्या इस रैली का मैसेज ये था कि अडवाणी जी और मोदी जी पहली बार एक मंच पर आ रहे हैं, दोनों के बीच जो भी तल्खियां थीं वो खत्म हो गई हैं? इस रैली का मकसद ये था कि शिवराज चौहान को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाना है, या इस रैली का मकसद ये था कि पीएम बनने के लिए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं मोदी जी को, उनको आगे बढ़ाना है और आंधी को और ज्यादा तेज करना है? क्या मकसद था? अमृता जी, सबसे पहले तो थोड़ा तथ्यात्मक रूप से सुधारूं। अडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ में भी एक कार्यक्रम में मंच पे बिलासपुर में साथ में थे, और उसके अलावा भी अलग अलग कार्यक्रमों में और विभिन्न आयोजनों में उन लोगों का साथ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मीडिया में प्रोजेक्टेड इतने समय से रहा कि वो अडवाणी जी नाराज़ हैं और मोदी जी से नाराज़ हैं। ये स्पष्ट रूप से वो मोदी जी से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी, उनके अपने विचार किसी कार्य प्रणाली को लेकर के है, और जिसको उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ के नाते कहा है। अभी विषय वो नहीं है। विषय अभी आपने अगले प्रश्न की जो चर्चा की, प्रश्न के अगले भाग में, कि ये रैली और राजनीतिक दल जो रैली करते हैं, रैली का मतलब जो लोगों से संवाद स्थापित करने का एक प्रयास, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद स्थापित हो राजनीतिक प्रक्रिया में, यही इस तरह की रैलियों की या फिर सभाओं की मंशा या फिर उसका अर्थ होता है। और यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन हुआ है, जो लोग आए हैं अपने नेताओं को सुनने, और मोदी जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को, वो एक ग्राउंड स्वेल, एक तरह की हवा, या आप कह लीजिए तो वो एक लहर, आप कह रहे हैं कि एक दिखा हवा, रहा है। एक आंधी, एक लहर है, और उसी को यहाँ पर ज्यादा प्रमुखता से आप उठा रहे हैं राजनीतिक संदेश के रूप में। मुद्दे भी हैं इसके, जो मुद्दे हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्या वाकई जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी की आंधी है, और उस आंधी को अब पोलिंग बूथ तक ले जाना है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई नहीं? देखिए, इसका संदेश यही था और ये संदेश सही सही गया है? रैली के संदेश पर मैं बात करूंगा अगर आप समय देंगी तो। जहां तक हवा की बात है, मैं अटल जी का एक कथन याद करना चाहता हूं। आपको तो याद होगा, अटल जी भी याद होंगे, और उनका कथन भी। 2004 में भी हवा की बातें की गई थी। तो अटल जी में और जो भी हो, भाजपा के अन्य नेताओं में जो चीज़ दुर्लभ है वो अटल जी में है, एक ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उन्होंने बाद में बाकायदा पब्लिकली कहा था कि कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि हम हवा बनाते हैं और ऐसी बनाते हैं कि और कोई बहे या ना बहे, हम खुद उसमें बह जाते। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है, और संभवतः इस समय भी हो रहा हो। मैं अटल जी को इसीलिए याद कर रहा था। दूसरी जो बात रैली के संदेश की आपने कही है, देखिए, भाजपा एक विरोधी दल है, और इस समय उसको लग रहा है कि उसके सत्ता में आने की संभावनाएं हैं। उसके पास एक बहुत दबंग किस्म का नेता है जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक नागरिक के नाते मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं होता। लोकतंत्र संस्थाओं का खेल होता है। संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लोकतंत्र में। और पिछले कुछ वर्षों से, और खास करके कुछ महीनों से, इस देश में जो कुछ हो रहा है वो इस लिहाज से बहुत चिंताजनक है। आप लोग पत्रकार हैं, ये ध्यान दीजिए कि सेना की गतिविधियां पहली बार इस तरह पब्लिक डिस्कोर्स का विषय बनी। ये चिंता का विषय होना चाहिए। ये चिंता का विषय होना चाहिए कि एक सबसे बड़े विपक्षी दल का सबसे प्रमुख नेता ये कहे। ये चिंता का विषय होना चाहिए। ये सवाल मोदी जी के समर्थन और विरोध का नहीं है कि इस चुनाव में हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि सीबीआई से। सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस करे, सीबीआई का दुरुपयोग भाजपा करे, ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन सीबीआई एक संस्था है और उसको इस तरह पॉलिटिक्स में घसीटना, पुलिस की संस्था है सीबीआई, पुलिस को पॉलिटिक्स में घसीटना, फौज को पॉलिटिक्स में घसीटना, ये बहुत खतरनाक संकेत है। पुरुषोत्तम जी, आप जो ये बात भी कर मैं रहे एक बात कहना चाहता हूँ, जी। 1 मिनट मुझे पूरी बात कहने नहीं दीजिए प्लीज। मैं मांग रहा हूँ।
जब मैं लड़ूंगा आपके पास। सीबीआई की जांच के कारण एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, तब सीबीआई निष्पक्ष होती है। और जब सीबीआई आपके एक विश्वास पात्र पुलिस अफसर की चिट्ठी का संज्ञान लेके उससे पूछताछ करने लगती है, तो फिर आपके खिलाफ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, आपके खिलाफ सीबीआई चुनाव लड़ेगी। ये नहीं चलेगा। यानी कि दो फेसेस, लोकतंत्र के लिए घातक। दो बातें थी। मैं लौटूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले विनोद जी, जिस तरीके से जहां से मैंने शुरुआत की थी, संदेश पे भी आऊंगा, और अमिताभ जी कह रहे हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन असल में जो शुरुआत हुई, जिस तरीके से मंच की तस्वीरें मीडिया में सामने आई और जो वहां से संदेश लालकृष्ण आडवाणी ने शुरुआत किया और आखिर तक अनेक वक्ताओं ने भाषण दिया, आपको लगा कि वो पार्टी अब इस मुद्दे से आगे निकल चुकी है, जिसको लेकर मीडिया में लगातार कयास, या कहूं कि लंबा एक विचार मंथन चलता रहा है कि एकजुटता कितनी है, कौन कमजोर है, कौन किसे आगे खींच रहा है, कौन किसे पीछे कर रहा है? देखिए, यथार्थ ये है कि नरेंद्र मोदी का जो टेक ओवर है बीजेपी का केंद्र में, वो लगभग कंप्लीट है। ये बात अलग है कि कुछ लोग उनके साथ दहशत में हैं, कुछ लोग मोहब्बत में हैं और कुछ लोग आने वाले वक्तों की आस में हैं। दिल से कितने उनके साथ है तो वक्त ही बताएगा। आजकल जब मैं नरेंद्र मोदी का भाषण सुनता हूं तो मेरी गौर नज़र इस बात पे होती कि वो क्या नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो वो बोले वो एक पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने शिवराज सिंह की तारीफ की, अपनी कम की, उनकी ज़्यादा की। उनको पता था कि शिवराज की विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रोक नहीं लगा सकते वो। उनको उन्हीं को वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में, अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उन्होंने कटाक्ष किया केंद्र की सरकार पे, सौतेले बाप की तरह व्यवहार का आरोप लगाया उन सरकारों के खिलाफ जो सरकारें भाजपा चला रही है। और उसी तरह से जैसा कि अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने कहा, उन्होंने सीबीआई की बात कही। सीबीआई तो अब तकिया कलाम हो गया है, कुछ उसमें कुछ तथ्य हैं और कुछ तथ्य बढ़ाकर पेश किए जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको मनोनीत किया है, उनको प्रोजेक्ट कर रही है, वो कुछ बातों पे चुप हैं। अभी हाल ही में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की जी। अभी तक मुजफ्फरनगर के दंगों पर एक वक्तव्य नहीं आया उनकी तरफ से। देखिए, वो राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं और ये कहते हैं, उनकी जो रैली होने वाली दिल्ली में, उसके प्रचार के संबंध में उनका एक जो बयान बार बार एफएम रेडियो पे चल रहा है कि भारत की सुरक्षा को खतरा केंद्र की सरकार से है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सुरक्षा को खतरा जो हमारा अंतर्द्वंद है, जो कम्युनल टेंशन्स हो रही हैं, जो भाई भाई से लड़ रहा है, उससे नहीं है क्या? और उस पे उनकी क्या टिप्पणी है जी? और आखिरी बात, हाँ। कि बाहैसियत प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट नरेंद्र मोदी को रैली तो ठीक है वो कर रहे हैं, दिल्ली में बड़ा पत्रकार सम्मेलन करना चाहिए जहां पर ये जो सवाल हम उठा रहे हैं जी। उनका जवाब दें वो सीधा सीधा, ताकि हम ये सही आकलन कर सकें कि नरेंद्र मोदी क्या उस पद के लिए उपयुक्त चॉइस है। जी जी, आपने जो बड़ा सवाल उठाया उसका जवाब मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से लेना जरूर चाहूंगी कि भारत की सुरक्षा को लेकर उनके विचार क्या हैं, ये देश की जनता को नहीं पता चल पा रहा। लेकिन उसके साथ साथ आज की रैली में ये भी नहीं पता चल पाया कि डीटीसी पर उनके क्या विचार हैं, ये भी नहीं पता चल पाया कि तमाम आर्थिक मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो दूसरे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, जिस पर काम हो रहा है देश में, उस पर उनके विचार क्या हैं, ये देश की जनता को नहीं पता चला। जो बातें पता चली वो ये कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, वो बात बहुत पहले से वो भी करते आ रहे हैं और बीजेपी भी करती आ रही है। और सीबीआई के दुरुपयोग के और भी किस्से आप लोगों की सरकारों के दौरान के हमारे पास हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जो बात अभी उन्होंने उठाई, विनोद शर्मा ने। मुझे यदि 2 मिनट का अनइंटरप्टेड समय मिल जाए तो मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूं। सबसे पहली चीज़ जो विनोद शर्मा जी ने कही और जो अग्रवाल साहब ने भी कही, उसकी बात पे मैं आऊँगा। सबसे पहले तो इनकी बात पे आता हूँ, संस्थान की चिंता कर रही है। जब मूल ही नहीं रहेगा तो सूद की क्या होगी बात, ये बात ध्यान में रखने की है जितने लोग चिंता करने वाले हैं व्यवस्था की। इसीलिए संस्थान की बात तब करिए जब व्यवस्था ठीक हो।
व्यवस्था ठीक करने की चिंता आज, यदि आपको लगता है कि नहीं व्यवस्था एकदम ठीक है और जो केंद्र में जो शासन चल रहा है कांग्रेस की यूपीए का वो एकदम ठीक है, तो वाह, आपकी बात का तो ताली बजाने का मन करेगा फिर देश की जनता का। इसीलिए आप पहले ये तय करिए कि व्यवस्था ठीक है या व्यवस्था के बाद फिर आप सोचेंगे कि उसके जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो ठीक होंगे कि नहीं, क्योंकि यदि आत्मा ही नहीं रहेगी, दिल ही धड़कता वो बंद हो जाएगा तो आप स्वस्थ हाथ पैर लेके क्या करेंगे। इसलिए विषय अभी सबसे पहले आत्मा और जीवन का है। मैं जवाब क्या है, सीबीआई है? अगर सीबीआई आत्मा है, सब अग्रवाल जी ने जो विषय उठाया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं वो संस्थाओं पे आक्रमण कर रहे हैं और संस्थाओं पे आक्रमण करने का मतलब है यदि कोई पूर्व